Hello everyone. Next topic of the unit 4 is 555 timer IC and its applications. So what is the 555 IC? It is a monolithic timing circuit. This is a timing circuit which produce accurate and highly stable time delay and oscillations. When compared to the application of operational amplifier in same areas, the IC 555 timer is equally reliable and is also cheap in cost. The timer is basically operated in two different modes, either as monostable mode or as astable multivibrator mode. Few important features of the 555 timers are: it can operate over wide range of power supply. It range from plus 5 volt to plus 18 volts. The external component that are connected should be selected properly. Therefore, timing interval can be made into several minutes along with frequencies exceeding several hundred kilohertz. 555 timer output can drive a TTL logic due to its high current output. We will discuss TTL logic in next lectures. So, output of 555 can drive TTL logic also. Duty cycle of this timer is adjustable. This is the pin configuration of 555 IC. Total 8 pins are there. Pin number 1 is for ground. Trigger is connected to pin number 2. Pin number 3 output. Pin number 4 for reset. 5 for control voltage. 6 for threshold. 7 pin number 7 for discharge, and 8 for VCC or supply voltage. This is the internal block diagram for 555 IC. Here we are using two comparator, two operational amplifier comparator, resistive network of 5 kilo ohm each, two transistor and a flip-flop. In this block diagram, we can see pin number 1 is connected with the ground terminal. So, all the voltages are measured with respect to the ground terminal. Next pin is pin number 2, that is for the trigger terminal.
This pin is an inverting input for the comparator 2, and it is responsible for transition of flip-flop from set to reset. Output of timer depends on the amplitude of trigger pulse, external trigger pulse, that is applied at this input. Next pin is pin number 3. This is for the output terminal. Output of the timer can be checked at pin number 3. Pin number 4 is for the reset. This pin is used whenever the timer IC is to be reset or disabled. If we want to disable the IC, then this reset pin will be activated. So a negative pulse is applied to this pin number 4. If it is not in use, then this pin will be connected to the higher voltage. Next is pin number 5. So pin number 5 is for control voltage. The threshold and trigger levels can be controlled using this pin. The amount of voltage applied in this terminal will be decided comparator when the comparator is to be switched. Pin number 6 is for the threshold terminal. This pin is nothing but the non-inverting terminal of the comparator 1. It compares the voltage applied to the terminal with a reference voltage of 2/3 of VCC. As 2/3 of VCC is connected at inverting is applied at inverting terminal of the comparator 1. The amplitude of voltage applied to this terminal, pin number 6, is responsible for set state of the flip-flop. When the voltage applied at this pin number 6 is greater than 2/3 of VCC, this comparator 1 switches to higher voltage. ठीक है, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है नंबर 6 और जो 2/3 ऑफ VCC है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड है. तो जब भी whenever this non-inverting terminal potential will be greater than 2/3 of VCC, then this comparator will go high and output of this comparator will be 1. The next pin is pin number 7. This is for discharge terminal. This pin is connected internally to the collector of the transistor. A capacitor is connected between this terminal and ground. It is also called discharge terminal because when the transistor saturates,
capacitor discharge through the transistor. When transistor is cut off, the capacitor charges at the rate determined by the external resistor and capacitor. The last pin is pin number 8, and pin number 8 we can see is connected with the supply terminal. So pin number 8 is for supply terminal. So a supply voltage of range of 5 volt to 18 volt can be applied to this terminal with respect to ground. We have already discussed these terms. So IC 555 timer can have following components. It has two comparator which are basically of two operational amplifier. It has SR flip-flop, RS flip-flop. It consists of two transistors. It also includes a resistive network in which 3 5 kilo ohm resistors are used, which generate three different voltage, 1/3 of VCC, 2/3 of VCC and VCC. Both comparators output is applied at the flip-flop. This flip-flop assume its state according to the output of these comparators, and one of the transistor is discharge transistor, and the collector of discharge transistor is connected to pin number 7. This transistor can be saturated or cut off according to output state of the flip-flop. Next is applications of 555 timer IC. 555 timer can be used for designing of multi-vibrator. For example, it can be used for astable multi-vibrator, for monostable multi-vibrator, as well as for bistable multi-vibrator also. It can be used as oscillator, for ramp generator, let's begin the application of multi-vibrator, and the first multi-vibrator is astable multi-vibrator using 555 timer. This is the complete diagram for astable multi-vibrator. Here two resistance and one capacitor is used. RA/RB connected here, and this capacitor is connected with pin number 6. And this will applied at non-inverting terminal of the comparator 1 and inverting terminal of the comparator 2. So this is the pin diagram for 555 timer, in which we have used RA/RB and capacitor C. And this is the block diagram, in which we can see we have applied RA/RB and capacitance, and this RA/RB is connected with the supply, and this capacitor, charge on capacitor will be applied at terminal
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ कंपैरेटर 1 एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ कंपैरेटर 2. So let's discuss the operation of stable multivibration through the 555 timer. So initially this supply voltage is applied, and here is the capacitor. So this capacitor start charging. This capacitor will start charging, धीरे धीरे चार्ज होते होते it will reach to a value of 2/3 of VCC. ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज जनरेट होता है 555 टाइमर में कैसे हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम 5 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं. तो इस पॉइंट पे अगर हमें हम रेफरेंस वोल्टेज की बात करें तो दिस विल बी 1/3 ऑफ VCC ठीक है. फॉर दिस पॉइंट रेफरेंस वोल्टेज विल बी 1/3 ऑफ VCC एंड फॉर दिस पॉइंट 2/3 ऑफ VCC. ठीक है, एक रेजिस्टेंस था तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 1/3 इंटू VCC. एंड इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो 2 रेजिस्टेंस हैं तो 2 अपॉन 3 VCC. एंड सो जब भी हम सप्लाई अप्लाई किया हमने तो यहाँ पे VCC के थ्रू इस रेजिस्टेंस के थ्रू एक कैपेसिटेंस चार्ज होना स्टार्ट कर देगा. चार्ज होते होते इस पे कुछ 2/3 VCC से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई हो गया. ठीक है, इतना धीरे धीरे चार्ज होगा और इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. इस पे इतना चार्ज आ जाएगा कि ये 2/3 VCC जितना इस पे पोटेंशियल आ जाए. तो हम इस कंपैरेटर में देखें. ठीक है, फर्स्ट वाले कंपैरेटर में हम देखें तो फर्स्ट वाले कंपैरेटर में अगर नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, ये पिन 6 नंबर किस से कनेक्टेड है ना, तो नॉन इन्वर्टिंग वाला जो टर्मिनल है वो ग्रेटर देन 2/3 हो जाए, ग्रेटर देन 2/3 VCC हो जाए और अनदर वोल्टेज इज 2/3 ऑफ VCC. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा है. ठीक है, तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2. तो इस केस में हमारा वोल्टेज आउटपुट जो है कंपैरेटर का वो होगा 1. ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और इन्वर्टिंग टर्मिनल है. तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टिंग टर्मिनल देन कंपैरेटर आउटपुट विल गो हाई. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि हमारे ये वाले पॉइंट पे तो 1/3 है और इस इन्वर्टिंग कंपैरेटर 2 की मैं बात कर रही हूँ. अब क्योंकि 2/3 दो जगह पे अप्लाई हो रहा था, कंपैरेटर 1 में भी अप्लाई हो रहा था और कंपैरेटर 2 में भी अप्लाई हो रहा था. देन कंपैरेटर 2 के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो कितना आ गया है, मोर देन 2/3 VCC. ठीक है, इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यहाँ से कितना वोल्टेज आ रहा है, मोर देन ग्रेटर देन 2/3 VCC. और इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है, 1/3 ऑफ VCC. ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो नॉन इन्वर्टिंग पे अब इस केस में है 1/3 ऑफ VCC. ठीक है, और यहाँ पे है इन्वर्टिंग में 2/3 ऑफ VCC से भी ज़्यादा. ठीक है, तो
तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लेस वोल्टेज है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो अब इस केस में जो कंपेरेटर 2 का आउटपुट है दैट विल बी 0। ठीक है, इस केस में जो कंपेरेटर 2 का आउटपुट है वो हो गया 0 और ये हो गया 1। ठीक है, अब हमारा जो 1 है कंपेरेटर 1 का आउटपुट इज़ कनेक्टेड विथ एस इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और जो कंपेरेटर 2 का 0 है दैट इज़ कनेक्टेड विथ आर इनपुट। तो Q की वैल्यू हो जाएगी, जब भी हमारे SR फ्लिप फ्लॉप में 1 एंड 0 हम अप्लाई कर रहे हैं, सेट पे 1 एंड रीसेट पे 0, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप गोज़ हाई एंड कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 और ये हो जाएगा 0। अब जब ये 1 है, Q इज़ कनेक्टेड विद द बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, दिस डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। तो जैसे ही ये हाई हुआ तो इस ट्रांजिस्टर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर को क्या कर देगा, इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। तो अब यहाँ पे इस कैपेसिटर में, कैपेसिटर ग्रेटर देन 2/3 VCC से चार्ज हो गया था। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑन हो गया है तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट सर्किट पाथ दे रहा है। ठीक है, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो इसको एक कैपेसिटर को एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा। ठीक है, लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा जिसके थ्रू अब ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और डिस्चार्ज होते 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 ये 1/3 VCC से भी कम अगर हो जाए तो अब क्या होगा। ठीक है, हमारे इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज था, रेफरेंस वोल्टेज था 1/3 VCC और इस पॉइंट पे था 2/3 ऑफ VCC। ठीक है, तो अब इस केस में फर्स्ट वाले कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, प्लस वाले टर्मिनल पे 1/3 VCC है और माइनस वाले टर्मिनल पे 2/3 VCC है। तो इस केस में कंपैरेटर 1 का आउटपुट हो गया 0। ठीक है, पहले 1 था, अब क्या हो गया 0 हो गया। क्यों हो गया, ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अब कंपैरेटर का आउटपुट हो गया फर्स्ट वाले का 0। ठीक है, दूसरे कंपैरेटर की हम जब बात करें तो दूसरे कंपैरेटर में वी हैव 1/3 VCC लेस देन 1/3 VCC एट टर्मिनल नंबर एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, और प्लस वाला जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये वाला, इस पे तो 1/3 VCC है और दूसरे वाले पे लेस देन 1/3 है। ठीक है, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा है, तो इसलिए कंपैरेटर 2 का आउटपुट हो जाएगा हाई। ठीक है, तो सेट इनपुट 0, रीसेट इनपुट 1। इस केस में जो Q होगा, इस केस में Q की वैल्यू होगी 0 और Q बार की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग होने पे आउटपुट हाई हो रहा है। तो इस तरह से अगेन रिपीटेशन गेप चलता रहेगा। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा और मल्टी वाइब्रेटर अपनी वैल्यू को चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट वेवफॉर्म भी दिया है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। ठीक है, तो जब भी कैपेसिटर चार्ज होता है तो जो कैपेसिटिव वोल्टेज है, जो वोल्टेज है वो हाई मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई ये लो हो जाएगा, फिर चार्ज हुआ अप हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज हुआ। तो ये प्रोसेस, ये रिपीटेशन चलता जाता है।
तो ये था स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम पहले ट्रांजिस्टर से भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज़ नथिंग, मतलब इसमें क्या है, जो हर एक मल्टी वाइब्रेटर की 2 स्टेट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में देयर इज़ नो स्टेबल स्टेट, ठीक है, कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है। हम इसको बोलते हैं क्वाजी स्टेबल स्टेट, ठीक है। ऑटोमेटिकली चेंजेस होता रहता है इसमें अपने आप, बिना किसी ट्रिगर इनपुट के। तो इसमें सिर्फ 2 क्वाजी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, नो स्टेबल स्टेट इज़ देयर। दूसरी चीज़, दूसरा मल्टी वाइब्रेटर है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में भी हमने देखा है देयर इज़ ओनली 1 स्टेबल स्टेट इन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड द अदर स्टेट इज़ क्वाजी स्टेबल स्टेट। देयर इज़ ओनली 1 और मोनोस्टेबल स्टेट is there, therefore it is called monostable or one shot multi vibrator. Pin configuration for monostable mode. In this pin diagram all things are same, बस एक चेंज है यहाँ पे, स्टेबल और मोनोस्टेबल में सिर्फ एक चेंज यहाँ पे ये आ रहा है कि हमने एक एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करी है यहाँ पे पिन नंबर 2 पे, ठीक है। यहाँ पे पिन नंबर 2 पे एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में भी हम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे और कैपेसिटेंस यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। बस यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि हमने एक एक्स्ट्रा ट्रिगर अप्लाई करी हुई है। अब इस डायग्राम से हमें समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, उस टाइम पे हमने एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी लिया है, और एक कैपेसिटेंस लिया था, एज इट इज़ लिया है, ठीक है। बट होता क्या था कि जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है ये उस केस में क्या होता था, इस पॉइंट पे भी कनेक्ट होता था और इस पॉइंट पे भी कनेक्ट होता था, ठीक है। बट अभी हमने क्या करा है, इस कैपेसिटर को सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ कंपैरेटर 1 से कनेक्ट किया है, ठीक है। कंपैरेटर 2 में इसका कनेक्शन हमने अभी नहीं दिया है। तो ठीक है, इस पॉइंट पे जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है ये है 1/3 VCC और इस पॉइंट पे हो जाएगा 2/3 VCC, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, कैपेसिटर चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, सप्लाई से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। सप्लाई कनेक्टेड है तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा और चार्ज होते होते धीरे धीरे उस पर वोल्टेज बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन 2/3 VCC। तो इस केस में जब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 2/3 VCC हो जाए और इस कंपैरेटर के दूसरे पॉइंट पे 2/3 VCC है और फर्स्ट वाले नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या हो गया, ग्रेटर देन 2/3 VCC। तो ग्रेटर देन किसका है, नॉन इन्वर्टिंग का है, तो इसलिए कंपैरेटर 1 का जो आउटपुट है वो क्या हो गया, इस केस में ये हो गया हाई, ठीक है। तो कंपैरेटर 1 का आउटपुट हो गया हाई। अब दूसरी चीज़, अब हमने यहाँ पे कोई कनेक्शन इसको नहीं दिया है, ठीक है। तो इस केस में अभी हमारा जो कंपैरेटर 2 का जो आउटपुट है वो 0 है, क्लियर। तो अभी क्योंकि जो ट्रिगर ये जो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है
मतलब इस ये जो आउटपुट है कंपैरेटर 2 का वो अभी 0 है। ठीक है, तो सेट और रीसेट पे क्या कंडीशन बन रही है, एस पे 1 आर पे 0। तो इस केस में हमारा क्यू की वैल्यू 1 और क्यू बार की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, तो ये क्योंकि क्यू 1 है तो ये किससे कनेक्टेड है, इस डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर से ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या होगा, क्यू क्योंकि कनेक्टेड है तो ये ट्रांजिस्टर को, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसके बेस में ये हाई वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, तो ये इस ट्रांजिस्टर को क्या कर देगा, इस ट्रांजिस्टर को ये कर देगा ऑन। ठीक है, तो एक इस कैपेसिटर को एक लो रेजिस्टेंस डिस्चार्जिंग पाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो लो इम्पीडेंस डिस्चार्जिंग पाथ इसको मिल गया, तो अब ये कैपेसिटर क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते इतना डिस्चार्ज हो जाएगा कि ये वन बाय 3 VCC से भी कम हो जाएगा। तो अब ठीक है, तो अब इस कंडीशन में ठीक है, अब क्या हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते इतना डिस्चार्ज होता गया कि इसका जो वोल्टेज है वो 1/3 VCC से भी कम हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो हमारा 2/3 था और अब इस पॉइंट पे कितना आ गया, 2/3 से भी कम है, मतलब 1/3 से भी कम है। तो कंपैरेटर 1 का आउटपुट हो गया 0। ठीक है, और मेरे इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज था, इस पॉइंट पे वोल्टेज था 1/3 VCC। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पे एक ट्रिगर पल्स अप्लाई कर दें। ये जो ट्रिगर पल्स होना चाहिए, ये होना चाहिए लेस देन 1/3 VCC। ठीक है, ये लेस होगी। ठीक है, जो ट्रिगर 2, जो पिन नंबर 2 पे जो इनपुट है वो उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, दैट शुड बी लेस देन 1/3 VCC। तभी ये कंपैरेटर 2 के आउटपुट को क्या कर पाएगा, हाई कर पाएगा, है ना। क्योंकि हमें इसके 1/3 VCC इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ऑलरेडी अप्लाइड है, हमें इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लेस देन 1/3 VCC देना होगा, तभी इसका आउटपुट होगा हाई। ठीक है, तो अब सेट पे 0 और रीसेट पे, सेट पे 0 और रीसेट पे क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, सेट पे 0 बना मतलब क्यू को ये क्या कर देगा 0 और क्यू बार को ये कर देगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक ट्रिगर अप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेबल स्टेट से क्वाज़ी स्टेबल में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रिगर पल्स अप्लाई कर रहे हैं एट पिन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेवफॉर्म से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, जब ये ट्रिगर इनपुट हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट पे है ना, नेगेटिव ट्रिगर है। जब हम ट्रिगर अप्लाई करेंगे ना तो तब आउटपुट वेवफॉर्म क्या हो रही है, हाई हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे 1 हो रहा था तो आर में 1 था, मतलब क्यू बार 1 था, और क्यू बार किसका आउटपुट है, क्यू बार जो है वो किससे कनेक्टेड है, दैट इज़ आउटपुट ऑफ द टाइमर IC। ठीक है, तो जब हमारा ट्रिगर इनपुट एक्टिव है तब हमारा आउटपुट वेवफॉर्म हाई आ रहा है। ठीक है, उस टाइम पे हमारा कैपेसिटर का भी वोल्टेज शो हो रहा है। ठीक है, तो फिर से वही ही प्रोसेस होती जाएगी। फिर से क्या होगा कि कैपेसिटर एकदम ड्रॉप हो चुका था, 0 वोल्ट मतलब बहुत लेस वोल्टेज हो चुका था, फिर से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देता है, तो ये रिपीटेशन चलता जाता है। तो ये था मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। नेक्स्ट है
बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर। अब यहाँ पे एक छोटा सा इसमें और बता देती हूँ व्हाट इज़ बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं यूजिंग बीजेटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसको हम मेमोरी में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आउटपुट पल्स कैसे, जो आउटपुट है वो कैसे ऑब्टेन होता है, दैट कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग अ ट्रिगर पल्स। ठीक है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए हमें हर बार एक ट्रिगर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज़ द पिन डायग्राम फॉर IC555 टाइमर इन बायस्टेबल मोड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ठीक है, ये हमने S1 और S2 लिया है, यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है कि जब भी हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना है, उस केस में हमें हर बार क्या करना होगा, हर बार एक ट्रिगर अप्लाई करनी होती है। तो S1 S2 यहाँ पे हमने 2 बटन्स यूज़ किए हैं, 2 स्विच यूज़ किए हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो रीसेट पिन है या रीसेट पिन है ना, S2 जो है दैट इज़ कनेक्टेड विद द दिस S2 इज़ कनेक्टेड विद द रीसेट पिन एंड S1 इज़ कनेक्टेड विद द this S1 is connected with the trigger। तो इस तरह से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए इन स्विच को टाइम पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो ये आउटपुट वेव फॉर्म है जिसमें हमने ट्रिगर इनपुट, एक ट्रिगर इनपुट लिया है, दूसरा हमने एक रीसेट इनपुट लिया है। ठीक है, ट्रिगर इनपुट व्हेन S1 इज़ यूज्ड एंड रीसेट इनपुट व्हेन S2 इज़ यूज्ड। ठीक है, तो बायस्टेबल आउटपुट हमें ऐसे मिल रहा है, जब हम ट्रिगर इनपुट ऑन कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, उस केस में आउटपुट बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का आउटपुट हाई है, और जैसे ही ट्रिगर रीसेट इनपुट एक्टिवेट हुआ है, उस केस में बायस्टेबल का आउटपुट लो हो जा रहा है। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ IC555। कंपैरिजन भी देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, सो स्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। So first comparison is based on the number of stable states. So in a stable multivibrator there is no stable state, ठीक है, but in monostable there is only one stable state and another one is quasi stable. And in bistable multivibrator there are two stable states are there. Next criteria is for next comparison is basis on the basis of trigger input, ठीक है। तो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में वी डोंट नीड एनी ट्रिगर इनपुट फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द आउटपुट, बट इन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हमें आउटपुट की स्टेट को चेंज करने के लिए ट्रिगर इनपुट अप्लाई करना होता है। सेम इन बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑल्सो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए हमें ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया है एप्लीकेशन का, ठीक है। तो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कैन बी यूज्ड एज रेक्टेंगुलर, स्क्वायर वेव और रैम्प जनरेटर, whereas monostable multivibrator can be used as the timer, and bistable can be used in flip-flop and memory. Based on quasi-stable state, there are two quasi-stable state in स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि स्टेबल में कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, बट हाँ अपने आप चेंजेस करती हैं वो, दैट आर
क्वाजी स्टेबल स्टेट्स। ठीक है, मोनोस्टेबल में एक स्टेबल है तो एक क्वाजी स्टेबल भी है, और बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कोई भी क्वाजी स्टेबल स्टेट नहीं होती, दोनों ही स्टेबल स्टेट होती हैं। ठीक है, दूसरा है आरसी कांस्टेंट पे बेस्ड। तो टाइम फॉर द टू क्वाजी स्टेबल स्टेट डिपेंड्स ऑन आरसी टाइम कांस्टेंट। ठीक है, स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की हम बात करें तो आरसी टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है टाइम, एंड टाइम मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में भी टाइम फॉर क्वाजी स्टेबल स्टेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आरसी टाइम कांस्टेंट। बट इन बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेशन there is no quasi states। सो ये था आज हमारा 555 टाइमर एंड इट्स एप्लीकेशन।